Good morning to all of you, well students. Today we are going to discuss the poem of mothers among other things. Earlier I told you that this poem has been written by great Indian poet A.K. Ramanujan. 3 poems have been prescribed in our syllabus: Obituary of Mothers among other things and A River, written by A.K. Ramanujan. I also told you that he was born in 1929 in Mysore, and at the age of 64 years, he died in 1993. Almost 3 decades he worked in America as a professor of Dravidian and linguistic studies in Chicago University, but he never forgot about his Indianness and sensibility. His poetry rooted in family, this theme was very dear to him. He has written many poems about mothers, about fathers, about husbands, about a family living in a congested area. He was awarded the Sahitya Academy Award in 1999 for his collection of poetry. This poem has also been taken from his great collection of poetry, Relations, published in 1971. In this poem, the poet recollects his mother, माँ. दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ये सब हमें बहुत अधिक प्रभावित करता है. दुनिया की विभिन्न भाषाओं में इस विषय पर बहुत अधिक कविताएं लिखी गई हैं. मुझे याद आता है, मुझे मेरे बचपन के एक दोस्त डॉक्टर शिवराज भारतीय ने भी राजस्थानी भाषा में माँ के ऊपर एक कविता लिखी है. बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन केवल 4 पंक्तियां मुझे उसकी ध्यान है. उन्होंने लिखा है कि मौ ममता रो मिंदर माँ, लाड कोड रो समंदर माँ, मारी होड करे कुन दूजो, परमेश्वर भी पूजे माँ. Likewise, perhaps Baba Nagarjun has also written some lines in Hindi. माँ नहीं थी वह, वो घर थी, आंगन थी, किवाड़ थी, बहते नल की धार थी. अचानक ही नहीं गई माँ, धीरे धीरे गई. जैसे जाती है कोई आंखों की रोशनी, जैसे जाती है कोई मधुर समृद्धि, धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क की जाती है समय गुजरने के साथ साथ. Likewise, in this poem, the poet remembers his mother, who is no more. He remembers. In this poem, the poet visualizes his mother in various stages of her life. She was very beautiful. He refers to her youth, her beauty, like silk and white petals of a flower. She was very fond of diamond earrings. He remembers her diamond earrings radiating light wherever she walked. She was very loving nature. When a baby cried, she always rushed to the cradle. But in course of time, friends, she became old. She lost all her beauty. Earlier I told you that nothing is permanent in this ever-changing world. Every beautiful thing will die and decay by chance or in course of time. Everything will come to its end. Time is tyrant, it spares nothing. And I told you, death
conquers all, that consumes all, death ends all. He remembers her beauty, her hands who had wrinkled and looked like wet, pink and withered feet of a bird. Well, friends, the poet remembers how his mother looked beautiful, extremely beautiful, wearing a sari. But now, in her old age, the sari does not fit to her lean and thin body. It looks like a broken wing of a wounded bird. Her mother, who once upon a time was the queen of the kitchen, becomes so helpless that she finds herself unable to pick up a grain of rice from the floor of the kitchen. We can imagine how was the condition of her mother, who had been very beautiful, extremely beautiful, very agile, very fresh. The poet becomes very emotional when he remembers how his mother's tongue had become like the rough bark of a tree. He becomes very sorry when he remembers about the tragedy with his mother, who had lost her fifth finger. The poet becomes very uneasy and uncomfortable when he goes through the journey of her mother from her youth to her death. The poem touches our heart and mind because every person feels himself familiar to all the events happen to a man's life. The similes used in this poem are very apt and appropriate. The poem has been written in free verse. There is no rhyme scheme. The most important feature of the poem, or the remarkable feature of the poem, is its sensibility. Words come to the heart of the poet and directly touches the heart of the readers. तो दोस्तों, आज हमने ए.के. रामानुजन द्वारा लिखी गई ऑफ मदर्स अमंग अदर थिंग्स इस कविता के बारे में अध्ययन किया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ए.के. रामानुजन हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि थे, जो न केवल एक कवि थे बल्कि बहुत अच्छे ट्रांसलेटर भी थे, बहुत अच्छे प्ले राइट भी थे, बहुत अच्छे फोकलोरिस्ट भी थे। 3 दशक तक उन्होंने अमेरिका के अंदर लिंग्विस्टिक और द्रविडियन स्टडीज़ के प्रोफेसर के रूप में शिकागो विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। बट उन्होंने कभी अपनी भारतीयता के बारे में कभी नहीं बोले। उन्होंने परिवार के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी। माता, पिता, बहन, भाई, पति, एक परिवार, बहुत ही कंजेस्टेड एरिया के अंदर रहने वाला, इन सब विषयों पर उन्होंने कविताएं लिखी हैं। ये भी माना जाता है कि वो संस्कृत और तेलुगु भाषा के भी बड़े अच्छे जानकार थे। बहुत अच्छे अच्छे लेखकों की अच्छी कविताओं का उन्होंने अनुवाद भी किया है।
और इसी कार्य के लिए उनको 1999 में साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया। उनकी ये जो पोइम है 1971 में जो कविताओं का संग्रह रिलेशन छपा था उसमें से ली गई है। इस कविता में उन्होंने अपनी माँ को याद किया है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी कुछ हिंदी और राजस्थानी भाषा की लाइनों को भी उद्धृत करने का प्रयास किया है। तो माँ एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही बहुत कुछ स्मृतियाँ हमारे मन में तरोताज़ा हो जाती है। वो याद करते हैं कैसे उनकी माँ बहुत सुंदर हुआ करती थी, बेहद खूबसूरत थी, जो कि कानों की बड़ी बड़ी बालियाँ पहनने की बड़ी शौकीन थी, डायमंड की बालियाँ। तो जब भी वो इधर उधर जाती, रोशनी के संपर्क में आती तो वो बालियाँ चमका करती थी। वो इतनी दयालु थी, स्नेहमयी ममतामयी माँ थी कि जब भी किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती वो हमेशा पालने की तरफ भागती भी जाती थी। सबको बड़े प्यार से स्नेह से परिवार का पालन पोषण करती थी। लेकिन समय के साथ साथ वो बूढ़ी हो गई। समय बड़ा निरंकुश होता है। सुंदर से सुंदर चीज़ें भी इस दुनिया में ख़त्म होगी, अपने अंत तक पहुँचेगी। कोई बहाना लग सकता है या समय के साथ साथ ख़त्म हो सकती है। समय बड़ा निरंकुश है। साहित्य में इसको एक रीपर के रूप में पर्सोनिफाइड किया जाता है जो किसी को नहीं छोड़ता। इसका भी समय पूरा हो जाता है, उसको इस दुनिया से जाना पड़ता है। मृत्यु शाश्वत सत्य है, वो सब पर विजय पा लेती है, सब कुछ खा जाती है, सब कुछ समाप्त कर जाती है। उसी तरह से उसकी माँ जो कभी बहुत सुंदर हुआ करती थी, अपनी युवावस्था को, जवानी को, सौंदर्य को खो देती है। उनके हाथ पक्षी के गीले गुलाबी रंग के मुड़े हुए हाथों की तरह से हो जाते हैं। वो ये भी याद करता है कैसे उसकी माँ ने अपनी 5वीं अंगुली खो दी थी। उसकी माँ जो साड़ी पहने हुए बड़ी सुंदर लगती थी, बहुत खूबसूरत लगती थी, लेकिन वो वृद्धावस्था के अंदर इतनी दुबली पतली, लीन एंड थिन हो गई थी कि वो साड़ी भी टाइटली उनके बॉडी पे फिट नहीं हो पाती थी। वो घिसटते हुए, लटकते हुए चलती थी जैसे किसी पक्षी का टूटा हुआ पंख होता है। घायल पक्षी हो, टूटा हुआ पंख उसके साथ साथ घिसटता जाता है। वो माँ जो कभी घर की रानी हुआ करती थी, रसोई पे राज किया करती थी, वो रसोई के फर्श के ऊपर से चावल का एक दाना भी नहीं उठा पाती। उनकी जेब भी बड़ी सख्त हो जाती है। जिस तरह से हम किसी पेड़ के तने के ऊपर उंगली लगा करके देखें तो बड़ी हार्ड होती है, बड़ी सख्त हो जाती है। तो ये उनकी माता की स्थिति हो जाती है। बड़ा इमोशनल हो जाता है कवि जब वो याद करता है कि किस तरह से उसकी माँ क्रिपल हो गई थी, विकलांग हो गई थी। एक उंगली उनकी बगीचे में कट गई थी किसी वजह से। कोई पिंजरा था जिसमें उंगली डाली और वो पिंजरा बंद हो गया, वो कट गई थी। तो इस तरह से इस कविता के अंदर जो उपमाएं काम में ली गई है वो बहुत ही उपयुक्त है। शब्द यूं लगता है जैसे कवि के हृदय से सीधे निकलते हैं और हमारे हृदय को छू लेते हैं। बहुत ही इमोशनल कविता है। हम सबको पूरे ध्यान से इसको पढ़ना चाहिए। और जब भी हम कोई किसी भी कविता का, लेख का, किसी का भी अध्ययन करते हैं, कोई नाटक पढ़ते हैं, तो उससे पहले हमें उस बुक्स को भी थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। उन बुक्स को, उस कविता के अंदर से भी थोड़ा सा नज़र डालनी चाहिए हमें। तो निश्चित तौर पे ये सब चीज़ें आपके फ़ायदेमंद रहेगी। अगली मुलाकात में एक बार फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू।